कैलेंडर से। कैलेंडर से। अब आपको कैलेंडर से ही ज्वाइन करना है, ठीक है। सारी चीजें दिखती है और अभी आप आगे जितने कैलेंडर आगे बढ़ाते जाएंगे सब चीजें उसमें दिखते जाएंगी। फाइन, यस सर, थैंक यू। okay. So this is whenever you are opening any particular compiler, it will automatically open an hello world program, okay. चाहे वो आप ये कंपाइलर यूज करो, कोड शेप का यूज करो या किसी और का यूज करो, तो आप जैसे ही इसको रन करोगे तो रन करने पर ऑटोमेटिकली printf, okay, this compiler does not consist of any code, so you can use this compiler also, but this compiler is very small, we need to scroll and we need to check the output. Let me check the output also. Suppose first line is printf. तो आज आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दिस सी प्रोग्रामिंग, ओके. सो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. शायद पारुल नहीं पूछा था. सो ये प्रोग्राम हमने रन कराया and the output is shown here. Yes, one error is there. So this is not good compiler, I think. Why this is not good? Because we need to scroll down. So I don't think this compiler works very well, but this compiler looks good. And let me run. Run is, where is run? Execute is given, okay. So I'm executing this, automatically it shows that gcc -o main star.c, whatever programs are there. So this name of program is main.c, and if you want to provide any input then it can take the input, okay. So अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर की. तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रखते हैं सबसे पहले. और बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ. जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को रीड करने के लिए हमारे पास, जैसे यहाँ stdio.h लिखा है, तो अलग अलग लाइब्रेरीज है, अलग अलग लाइब्रेरीज में अलग अलग चीजें. जैसे मैंने लिख दिया एक इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट, ओके, h standard lib.h. So some functions are here, and these functions like system is a function, system, system, and inside that whatever command I am typing, it will automatically run, okay. So suppose I had typed here cal, then it will run calendar, okay. There is one error now, so it is not able to run this program. Why? Because anything else is there, cal is okay, everything is okay, but semicolon is also given. So for this type of program we need to use different compilers, okay. Let me check here also. No, it is not running. So this function is not there, this standard library function is not there. So let us start by simple programs. So this is our first program, okay. The first thing, integer main, there is a function known as integer main. तो जब भी आप C प्रोग्राम रन करवाते हो, C प्रोग्राम रन करवाने के लिए C प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको रन करवाना चाहोगे तो ऑलवेज the compilers check for the main program, okay. This main is the important program, so using this main program it will run your program. Fine, any doubt up to this? Yes. This screen is shared or not? Screen is shared, okay. तो सपोज कीजिए अब आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे ये आपने लिखा है ना करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस हमेशा होंगे और इस इंटीजर स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होगा, हमेशा होगा, ठीक है.
अब ये प्रोग्राम रन हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम हम चेक करते हैं। दूसरा प्रोग्राम है क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर। सपोज आई हैड टेकन और अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो आप लोगों को बनाना है। ये मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इस बार एक और बार बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लेके, और इसके बाद में एक फॉर्मूला दूंगा जिसमें सारे आउटपुट आने चाहिए। ठीक है, 2 या 3 इनपुट लेंगे और 4-5 आउटपुट आएंगे। सो इंटीजर a, b, c। ओके, printf enter a, b and c। scanf %d and %d, followed by, because we are entering 3 values, a, b, c. Okay, let us now display printf, or let me take one more variable, that is our expression. Okay, so expression x is a square plus 2a into b plus c. Suppose this will be the expression. Okay, so whatever value you are providing here, it will automatically calculate the formula a square plus 2ab. Okay, 2 into ab. So this will give the output. Now printf x equals to %d, and that is our expression. Okay, so whenever you are using scanf, it must be scan using @ variable. Okay, @ variable and @ variable. So this is, now it is executed here. And what is the problem? Scanf is written wrong. Scanf, now it is correct. Okay, तो जब भी आप कोई फंक्शन गलत लिखते हैं, जैसे scanf गलत लिख दिया, तो it will automatically generate one error, and the color is also, semicolon is not given here, so semicolon is there. Okay, so likewise you can, okay, enter a, b and c, and it is not entering any value. So what will be the problem? क्या की problem यहाँ? Yes, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे सपोज कोई वैल्यू देना 45, 67 और 89। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज। जब आप इस प्रोग्राम को अब कंपाइल करेंगे तो अब दूसरा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि इसको इनपुट नहीं मिल रहा था। अब ये तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गई है ना, तो हम एक काम करते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ना जाके आपको सिंपल टास्क दिखाएंगे पहले। तो लेट मी paste the program here also and then run. So it is now asking for enter a, b and c. So let me enter 34, 45 and 56. So now answer is x equals to 4272. So is this screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, now I think it is much more clear. Or black screen is good, or this screen is good? This screen is good. This is good. Okay, so this is simple thing. Now let me explain each line. First line is standard input output. Okay, ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, आपको लिखना ही है। इसके बाद इंटीजर मेन से प्रोग्राम लिखना शुरू होता है। सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे वैल्यू। आपके पास प्रॉब्लम क्या दी हुई है? आपके पास प्रॉब्लम ये दी हुई है
to calculate x equals to what is the answer? A square. Okay, A square plus next thing is 2ab plus c. This is our task. Okay, so how do you calculate mathematically? Mathematically आपके पास एक a, b और c की वैल्यू होनी चाहिए. जब a, b और c की वैल्यू होगी तब आप इसको फॉर्मूला में एंटर करोगे. तो लेट मी शेयर यू वन बोर्ड ऑल्सो. सो हियर द बोर्ड इज ऑल्सो देयर. अनशेयर करने के बाद व्हाइट बोर्ड मैंने यूज कर लिया. ओके, अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आई हुई है? जब आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई है. अब इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास वैल्यूज क्या क्या दी हुई है. सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिया है x इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c. ओके, तो अब आप इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? इनपुट क्या क्या चाहिए आप लोगों को? आपके पास क्या क्या चीजें नहीं है? तो आपको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए. 2 तो आपको पता ही है कि क्या होता है. इनपुट हो गया abc. अब आपके पास फॉर्मूला भी हो गया, abc भी हो गया. ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्योंकि यूजर को पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं. तो जैसे ही abc एंटर किया, अब आप डिस्प्ले क्या करेंगे? x को डिस्प्ले करेंगे जो फॉर्मूला है, और इनपुट फॉर्मूला करने के बाद ये फॉर्मूला यहाँ पर और लगाया जाएगा, है ना. तो जब हम प्रोग्रामिंग की टर्म में जाते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए हमको बताना पड़ता है कि सबसे पहले हम एक फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं जिसका नाम है stdio.h. ओके, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये बताएंगे कंपाइलर को क्या बताना पड़ता है हमको? यस, कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि ये प्रोग्राम इंटीजर मेन जो है, मेन प्रोग्राम जहां पर हम इस प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं वो यहाँ से लिख रहे हैं. और क्या क्या चीजें हम इनपुट चाहिए? इनपुट चाहिए ABC. तो इंटीजर टाइप का हमने ले लिया, A, B और C. इंटीजर के जस्ट बाद कोई कॉमा नहीं रहेगा. इंटीजर के बाद पहला वेरिएबल. इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल देन A, B, C. ओके, इसके बाद पता लगा कि रिजल्ट को हम डिस्प्ले किस में करवा रहे हैं? X में, तो इसलिए हमने X लिया. इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इनपुट करवाना चाहेंगे यूजर से. तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि उसको इनपुट करना है? तो हम यूजर को बोलेंगे कि भैया आप इनपुट करें. तो /n लिखा, एंटर 3 वैल्यूज A, B एंड C. ओके, अब इसके बाद जैसे मुझे पता लग गया, स्क्रीन में ये दिखने लगेगा. तो जैसे मुझे ये दिखने लगा, इसको देखने के बाद मैंने क्या किया? 3 वैल्यूज को एंटर करवाया. 3 वैल्यूज कौन कौन सी है? तीनों वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तीनों वैल्यू डेसिमल नंबर है. तो डेसिमल नंबर को मैंने एंटर करवा दिया. अब कॉमा लिखा, किस जगह पे एंटर करवाया? पहला नंबर जो है, पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? एड्रेस ऑफ ए होनी चाहिए, तो एड्रेस ऑफ ए लिखा. दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एड्रेस ऑफ बी होनी चाहिए, तो मैंने एड्रेस ऑफ बी लिखा. तीसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? यस, एड्रेस ऑफ सी होनी चाहिए. तो तीसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ सी मैंने यहाँ पर इनपुट करवा दी. ओके, सो ये इस तरह से हम करते हैं, है ना. अब यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया प्रोग्राम में, तो आपको ऐसा प्रोग्राम में तो बनाते नहीं बनेगा, पर ये क्यों हम 3 बार % लेते हैं, दिस इज द रीजन. ओके, नाउ जब आपके पास एक बार वैल्यू आ गई, आपको पता ही लग गया कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो अब आप क्या करोगे? फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला क्या लिखोगे? ए स्क्वायर plus 2 into a into b. Okay, 2ab will not work because it is computer. So 2 multiplied by a multiplied by b will work. Okay, plus c. And finally आप क्या कर दोगे? रिजल्ट डिस्प्ले करवा दोगे, printf /n x
वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू %d। %d कहाँ से आएगा? यहाँ से ये आएगा। ये ऑटोमेटिकली चेक नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ %d, a blank space and it is fetching for a value and then followed by इस %d की जगह पे क्या आना चाहिए? x आना चाहिए, तो x आ गया। okay, and then finally because we have written integer, so better to write return 0 and then finally this program will end. okay, so this is step by step procedure to write a program. कोई डाउट है आपको? नहीं है? अब आप इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए। यस, फ्लोट इन प्रोग्राम, फ्लोट। आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्लोट? हाँ, फ्लोट कब यूज करेंगे प्रोग्राम लिखते हुए? मोस्टली जब हम डेसिमल पॉइंट नंबर्स यूज करते हैं, डेसिमल पॉइंट बोल रहा हूँ, जब हम फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर यूज करते हैं जहां पर पॉइंट्स होते हैं। ओके सर। अब आपको देखिए, आप इसमें देखिए, इस प्रोग्राम को हम किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, है ना? इस प्रोग्राम को ब्यूटीफाई करते हैं हम। ये सेम प्रोग्राम आपने नोट कर लिया है, कॉपी कर लिया है? यस सर। ओके, अब मैं इसको ब्यूटीफाई कर रहा हूँ। हाँ, इसके हम 3 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल रहे हैं और ये /n भी हटा दिया मैंने। enter the value of a, the value of a. okay, so this is more interactive now, then better to use this. Enter the value of b and enter the value of c. अब आपने ये एंटर तो करवा दिया है ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी इससे। तो हम क्या करने वाले हैं, स्कैनएप भी सिंगल सिंगल रखेंगे, स्कैनएप भी सिंगल सिंगल रखेंगे। जैसे ही आपने एंटर ए किया तो यहाँ पर स्कैन क्या होगा, केवल ए स्कैन करेंगे हम। ओके, नाउ दूसरी वैल्यू, जैसी आपने बोला कि हमको दूसरी वैल्यू चाहिए, तो हम दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे बी। फिर तीसरी वैल्यू हमको चाहिए सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करवाएंगे सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। अब मान लो ये अभी तो हम ए बी सी कर रहे हैं, मान लो ये बोलता है कि भाई आप आर की वैल्यू एंटर करो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जहां भी जैसे जैसे भी इक्वेशन आ रहे हैं। अब आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। सो गया ये प्रोग्राम। So this is the problem while using compilers online. और यहाँ पर तो ये है कि ये अपने मन से ही ले लेता है वैल्यू। Let me try to read it. Yes. So I'm sharing the screen. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओह, नो सर। ओके, सो अब दिखा आप लोगों को? Yes sir. हाँ। ओके, अब ये प्रोग्राम मैं रन करवाता हूँ तो ये रन ही नहीं हो रहा है। रन नहीं हो रहा है इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे बढ़िया कोड ब्लॉक्स पर आज मैंने सिस्टम एक भी बार रीस्टार्ट किया है कि नहीं किया है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए सिस्टम रीस्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? और इसके पहले ये प्रोग्राम को कॉपी करके व्हाट्सएप चैट में डाल देता हूँ।
तब तक आप लोग इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो आप लोगों का ग्रुप है एमएससी, एमएससी शायद इसमें नहीं है तो इसमें होगा। तो मैंने डाल दिया है। अब तब तक आप लोग इस प्रोग्राम को बनाओ, मैं तब तक इस सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज सिस्टम सुबह से रीस्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं दूसरी जगह से मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। कहीं म्यूजिक बज रहा है क्या? Let me mute myself also. I am muted. Okay. So let me restart.
ये स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रही है? यस सर। कोड ब्लॉक्स वाली दिख रही है ना? मैं इसको ज्वाइन भी कर लेता हूँ। यस सर। तो मुझे भी पता लगेगा कि दिख क्या रहा है आप लोग को। So code blocks is not available. Hello. Okay, so this challenge is there in WhatsApp for you people. आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं. Okay,
So let us now see the same program in code block. Now code block is visible, I think, and in this code block आप जब भी जाएंगे आप कहीं पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं. आप लोगों के लिए ये कंपाइलर इंस्टॉल करना मस्ट नहीं है, लेकिन यदि आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो एम्प्टी फाइल क्लिक करके यहाँ प्रोग्राम टाइप करेंगे. टाइप करने के बाद आप यहाँ पर बिल्ड में जाएंगे और बिल्ड में जाने के बाद जब कंपाइल करंट फाइल करेंगे, है ना, तो पहले तो आप लोगों को इसको सेव करना पड़ेगा. तो इसका नाम हमने क्या रखा है, इस प्रोग्राम का नाम रखा है इक्वेशन program 1.c. okay, so this program 1.c is there and I am saving this program.c, and I had told you key it will generate object file. So let us first build the first compile the program. So ये program जैसी compile होता है, कंपाइल होने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा इसका आउटपुट, ये gcc.exe -c और -o. तो इट विल जनरेट प्रोग्राम डॉट ऑब्जेक्ट फाइल. तो अब मैंने इसको सेव कहाँ किया था, सी में. सी के अंदर एक प्रोग्राम नाम का फोल्डर बना था और रिसेंटली हमने प्रोग्राम 2 बनाया. ओके, तो ये प्रोग्राम 2.o फाइल बनी हुई है, प्रोग्राम 2 डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनी हुई है. लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्रोग्राम 2 की एग्जीक्यूटेबल भी बन गई. गुड. अब हम वापस यहाँ पर जाएंगे, बिल्ड एंड रन. ओके, बिल्ड एंड रन पे जैसे ही क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. ओके, अब आप देखिए कि जो चीज प्रिंटफ में है वो यहाँ पर आ रही है. तो मैंने सपोज डाला 45. फिर अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, एंटर द वैल्यू ऑफ बी एंड सम एरर इज देयर एंड एंटर द वैल्यू ऑफ सी एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. कुछ एरर आ गई है. मैंने क्या किया है ये मुझे चेक करना पड़ेगा. ओके, क्या एरर है बताएंगे आप लोग देख के प्रोग्राम. /n is not written. Yes, what is not written? The /n. /n is no. This is not an error. This is the modifier or data acceptor. Okay, what is its name? आप जब %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यहाँ आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर तो दिया ही नहीं है. %d एंड %d, तो वो जाएगा कहाँ पर, कहीं नहीं जा पाएगा. अब आप इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ड एंड रन कीजिए. अब आप देखिए कोई एरर नहीं आएगी. ये मैंने इसको छोटा किया और ये स्क्रीन को पैरेलल लगाया. तो मैंने डाला 45. नाउ बी की वैल्यू मैंने डाली 56 एंड सी की वैल्यू डाली 78. Now answer is coming and process is written 0. Process is written 0 means it will clear the memory. 0 cross x means it will clear, it has already cleared the memory. Okay, got it or not? Yes. कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, अब सपोज कीजिए कि आप इस प्रोग्राम का क्या दिखाना चाहते हैं. आपने प्रोग्राम तो ले लिया है, अब आप शो करना चाहते हैं कि इक्वेशन भी आप दिखाएं. इक्वेशन भी आप दिखाएं तो आप दिखाएंगे printf इक्वेशन. ओके, इक्वेशन x इक्वल्स टू क्या क्या वेरिएबल आपने लिए हुए हैं, है ना. x इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, यहाँ से मैं पूरा एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ. तो ये मैंने डाल दिया. अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ चाहने की तो बात ही नहीं है वैसे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है. x इक्वल्स टू दिस एंड फॉर दिस x वैल्यू इज दिस. अब आप यदि इसका कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, ये इक्वेशन दिखाई देगा. अब ये सब्स्टिट्यूशन आपका दिखाई देगा. यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग a you are writing
D, instead of writing A is %D, and instead of writing B is %D. Okay, so it is bit complicated. I am not going for this because इसको यदि आप देख लोगे तो इसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग से इच्छा खत्म हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। अब आप इसको सिंपल रन करवाएंगे तो ये अबाउट में आ गया और बिल्ड एंड रन। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा हल्का सा अलग हुआ है प्रोग्राम। हल्का सा क्या अलग हुआ है कि मैंने प्रिंटफ में एक और चीज डाल दी है। अब मैंने डाला 45, 56, 78 एंड देन ये दिया है इक्वेशन x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू दिस। ओके, तो यहाँ मुझे यदि मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लगा दूं, इक्वल्स टू यहाँ लिखूं और ये हटा दूं, तो अब और प्रोग्राम थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगा। सो बिल्ड एंड रन। नाउ फिर से बिल्ड एंड रन किया मैंने। सो अगेन 45, 34, 32। अब आप देखिए कि इक्वेशन x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c इक्वल्स टू 59। अब ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने a की वैल्यू यहाँ डाली है 45, तो 45 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 43, आप इस जगह पे वैल्यू रख रहे हैं और c की वैल्यू इस जगह पे रख रहे हैं, तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात? ये आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को? कुछ ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है पर आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि क्यों नहीं समझ में आता। अच्छा हो गया आज मैंने ये चला दिया है ना। अब आप लोगों को आउटपुट दिखेगा। ये देखिए, फिर से मैं रन करवाता हूँ और ये मैंने फिर से रन करवाया, डीबग एंड बिल्ड एंड रन कर दिया मैंने। ये बिल्ड एंड रन करने के बाद मुझे जो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, उस प्रोग्राम में ये आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्या क्लियर कट दिखाई दे रहा है? इंटर द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 3, देन 2, देन 3। ओके, a की वैल्यू भी 3 डाली, b की वैल्यू भी 3 डाली, इसको मैं 4 डाल देता हूँ। ये मैंने 4 डाला। अब आप देखिए ये आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे आ रहा है? जो आपने प्रिंटफ के अंदर जैसा डाला है वैसे का वैसा ही यहाँ पर ये दिखाई देगा। ओके, so let me minimize this screen and show you this screen. So now this screen is visible to you. अब आप देखिए वन बाय वन, एक के बाद एक स्टेटमेंट को मैच कीजिए। यहाँ पर ये आ गया, a की वैल्यू 3 आपने रखी, b की वैल्यू आपने 2 रखी तो b में चले गया, c की वैल्यू आपने 4 रखी। अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मैंने स्लैश एन नहीं दिया है करके डायरेक्टली ये आउटपुट ये वाला दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद भी यदि मैं कुछ लिखता हूं, मान लो मैंने प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ और फिर मैंने लिख दिया अंडरस्टैंड और नॉट, अंडरस्टैंड और नॉट। सो इट विल ऑल्सो clubbed with this. Okay, so why we are using this slash n, now you may be able to understand. Okay, there is one error. Oh, this error is now तो अब आप लोग के सामने ये स्क्रीन आ गया है आउटपुट का, और मैंने इसके सामने ये पैरेलली रखा हुआ है। मैंने वैल्यू डाली 1, इसके बाद मैंने वैल्यू डाली 2, इसके बाद मैंने वैल्यू डाली 3 और इसके बाद ये प्रोग्राम रन हो गया। और क्योंकि मैंने स्लैश एन नहीं लिखा था तो आउटपुट आया 8 अंडरस्टैंड और नॉट। अब मैं जैसे ही इसमें यहाँ पर स्लैश एन डालता हूँ इस जगह पे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है,
build, then build and run, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको पैरेलली रखता हूँ। A की वैल्यू मैंने डाली 1, B की 2, C की 3। अब यहाँ देखिए अंडरस्टैंड और नॉट नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्लियर? ठीक है। अब आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है, सी प्रोग्राम बनाना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज ये है कि आप लोगों को दो प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम बनाना है, डेटा एक ही एंटर करवाना है, लेकिन उससे आप दो चीजें कैलकुलेट करोगे। ठीक है? और वो है आप लोगों का प्रोग्राम रहेगा फाइल न्यू तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है? और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r। ओके? एंड सर्कमफेरेंस होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। ओके? तो अब आपको एक ही फॉर्मूला से केवल आपको r की वैल्यू एंटर करवानी है और उसके बाद बताना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे? कौन दिखाएगा सॉल्व करके? लैपटॉप है किसी के पास? कि अभी सॉल्व नहीं करना है तो किसी के पास भी लैपटॉप नहीं होगा? है सर। किसके पास है? सर अनिल। अनिल, मैं आपको ना शेयर, आपको प्रिविलेज दे रहा हूँ। ठीक है? अब आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने अनिल को बना दिया प्रेजेंटर। चेंज। अब अनिल आपको बताएंगे क्या करना। तब आप अपना डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर करो। और कंपाइलर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हो। सर विदाउट कैसे? क्या चीज? विदाउट? सर विदाउट कंपाइलर के कैसे करेंगे? नहीं, आप रन मत करवाओ ना, आप प्रोग्राम बना के दिखाओ ना। केवल मैंने जो आपको बताया मेथड, उससे प्रोग्राम बता के दिखा दो। वर्ड फाइल ओपन करो और वहां रन करवा दो। नॉट अंडरस्टैंड। आप समझ नहीं पाए? नो सर। आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो? टाइप करते आता है आपको? हाँ सिर्फ टाइप करना है आपको। कोई भी फाइल ओपन करो, उसको टाइप, उसमें टाइप करके दिखाओ प्रोग्राम। आपको रन नहीं करवाना, रन तो मैं करवा दूंगा। अभी भी नहीं समझ में आया? अब आप सबसे पहले शेयर करो अपनी स्क्रीन। मैं बताते जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर पे जाओ और जो सबसे पहला स्क्रीन होगा उसको शेयर करना है। और कोई भी वेबसाइट मतलब जैसे व्हाट्सएप वगैरह खुली होगी तो उन सबको बंद कर देना, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ दिखाई देगी। ठीक है? ये आपका स्क्रीन आ गया। ओके? अब यहाँ ये वर्ड में तो प्रॉब्लम जाएगी। वर्ड को क्लोज कर दो। वर्ड को इसलिए क्लोज कर दो, हाँ, इसमें जाओ, नोटपैड होगा, नोटपैड को क्लिक करो। इवन
आपके पास वो पेन वाला सिस्टम भी है क्या, व्हाइट बोर्ड वाला सिस्टम? हाँ है सर। हाँ तो आप उससे पेन से लिख दो। यदि आपका कर्सर फ्री रहता हो तो, नहीं रहता हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर आपको तो टाइप ही करना पड़ेगा ना। नो सर, इसमें टाइप नहीं हो पाएगा। हाँ इसको क्लोज करो, स्टार्ट बटन पे जाओ, नोटपैड होगा। अरे हाँ, आप तो ऑनलाइन कंपाइलर में भी कर सकते हो। हाँ यस सर। तो ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करके, अच्छा पहले आप नोटपैड में टाइप ही करो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यस, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अब मैं कुछ नहीं बताने वाला, बाकी आपके फ्रेंड्स बताएंगे सारा, ठीक है? ओके सर। हाँ, and I am turning off my video also. I am here only, but I am just viewing your screen, क्या क्या आप कर रहे हो। सर विच प्रोग्राम? आपको रेडियस और एरिया दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है सर्कल का। ओके। हाँ, गायत्री, आप तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। You'll write it float man after it. यस। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था पिंकी? यहाँ फ्लोट थोड़ी ना आएगा सर। ओके ग्रेट, आप लोग हेल्प करो। ओके, मैं यहाँ म्यूट कर रहा हूँ। सेकंड रो इरेज कर दो पूरी, और वहीं लिखो हैशटैग इंक्लूड, और स्टूडियो जैसे लिखा है उसकी जगह CONIO कोनियो लिखो, कोनियो डॉट। फर्स्ट ठीक थी, फर्स्ट जो लिखा था वो ठीक था। डॉट एच, हाँ CONIO कोनियो, हाँ एच इंट मैन। रेडियस? हाँ इसके नीचे फ्लोट रेडियस जो भी है, रेडियस इनटू एरिया, इसके नीचे जो करली हाँ ब्रैकेट लिए, इसके नीचे फ्लोट फ्लोट। FLOAT। लिखो फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, और जो एक एरिया ले रहे हम इनटू में एरिया, कोमा लगा के एरिया लिखो। फ्लोट पाई PI
इज इक्वल टू 3.14। फिर से कोमा वाला क्या बोलते हैं उस कोमा को? यहाँ पे लिखो रेडियस। यहाँ पाई इज एरिया इक्वल एरिया टू, ये तो एरिया बाद लिखो। का पहले एरिया रेडियस एरिया आएगा ना। एरिया आएगा सर। पाई की जगह नहीं, पाई रहेगा और रेडियस की जगह एरिया आएगा। सर्च कर। एरिया के बाद ये वाला कोमा नहीं लगेगा, वो सेमीकोलन। नो सेमीकोलन। या अगर यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं पिंकी, तो इंटीजर मेन थोड़ी आएगा, फ्लोट मेन ही तो आएगा। इंट आर आएगा, सॉरी इंट आर आएगा। फ्लोट की जगह नहीं नहीं, फ्लोट यू का यू सेम ठीक है, और जो मेन लिखा है ऊपर उसकी जगह आर आएगा, इंट भी रहेगा। इंट आर, और जो इंट आर के बाद जो दो लगा रखे हैं वो हटा दो और उसकी जगह सेमीकोलन लगेगा, जैसा एरिया के आगे लगा रखे हैं। हाँ, सेमीकोलन। प्रिंटफ। प्रिंट एफ। वो वाला स्लैश एंड फिर ऊपर एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, थोड़ा डैश दे के आगे लिखो एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया किसका? सर्कल नहीं लिखेंगे यहाँ स्कैन पे? स्कैन एफ लिखो। क्या हुआ? एरिया नहीं लिखेंगे क्या? यहाँ पर? ऑफ सर्कल या सर्कल एरिया? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं आएगा अगर यहाँ हम रेडियस एरिया आएगा यहाँ। पाई इज इक्वल टू 3.14 नहीं आएगा। नहीं, पाई तो आएगा ना। फ्लोट में वो जस्ट लाइक जो कांस्टेंट होते हैं ना, वो चीज फ्लोट में ली जाती है। नो। ये वाली ब्रैकेट और परसेंटेज डी।
डी और आर। R. सर्कल एरिया, अब तो फॉर्मूला लिखेंगे ना। हाँ परसेंटाइल डी के बाद एट द रेस ऑफ एंड आएगा वहां पे आर के पहले, एड्रेस ऑफ आर। अब फॉर्मूला आएगा ना ओनली बस। हाँ आर स्क्वायर या आर इंटू आर भी लिख सकते हैं। आर इंटू आर लिखना है, आर स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे। प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल। हाँ प्रिंट एफ प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल क्यों आएगा? क्योंकि वो पहले तो जो एरिया ऑफ सर्कल ये लिखा जाएगा, फिर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी आएगा। इक्वल टू में हाँ थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, परसेंटाइल डी लिखा है ना, उसके बाद कोमा देके एरिया लिखो। प्रिंट में परसेंटाइल डी आगे, उसके आगे, डी के आगे। परसेंटाइल डी पहले आएगा फिर एरिया उसके बाद आएगा। हाँ यहाँ पे कोमा देके और फिर एरिया लिखो। नहीं अकेला एरिया ही आएगा, सर्कल नहीं लिखना, ऑफ सर्कल। ठीक है। रिटर्न वो भी लिखवाने। इसमें वो नहीं आता क्या, वो क्या क्या बोलते हैं उसे, गैच बोलते हैं, GETCH। गेट सी एच। वो नहीं आएगा, हाँ रिटर्न आएगा ना, रिटर्न वो नहीं आएगा। रिटर्न 0। ओ क्यों नहीं आएगा? रिटर्न 0, हाँ वही। ब्रैकेट में नहीं लिखना है, विदाउट ब्रैकेट लिखना है। किसको? 0 रिटर्न 0। के बाद जो ब्रैकेट के, हाँ वो नहीं आएंगे, ब्रैकेट में नहीं आएगा वो।
ऐसा नहीं होगा कि इंट मेन आए और फिर से नीचे जाके इंट आ रहा है। int आएगा। मेरे हिसाब से तो फ्लोट मेन आना चाहिए वहां पे। जैसा जो पहला जो हेडर एंड फाइल जो ऊपर का प्रोसीजर होता है वो तो सबका ही सेम होता है इंट मेन तक, और जो हमने ये इंट आर लिखा है ये भी रहेगा ही, ये नीचे जाके फिर से आएगा एक कर्ली ब्रैकेट के बाद। इंट आर क्यों लिख रहे हैं हम वहां पे? int main आएगा ना यहाँ पे। इंट मेन आएगा, फिर एक ये वाली कर्ली ब्रैकेट आएगी जो नीचे इंट आर से पहले लगा रखी है, इन दोनों के बीच में इंट आर भी रहेगा एक बार बीच में। नहीं नहीं, इतना गैप क्यों दिया? आता है इंट फ्लोट मेन आएगा। इंट जब आता है जब अपने पास इंटीजर होता है, पर अभी अपने पास क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है ना, इसलिए फ्लोट मेन आएगा। Completed? Yes sir. हम लोग के हिसाब से कंप्लीटेड। ग्रेट, चलो कुछ काम किया, अच्छी बात है। अब आपको मैं बता दूं, मतलब शुरुआत में आप लोगों ने कहाँ कहाँ से क्या क्या किया था। मैं इस स्क्रीन को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ये स्क्रीन मैंने कॉपी कर ली और अब मैं शेयर करता हूँ, आपको बनाता हूँ वापस से। मेक अटेंडी चेंज कर दिया एंड नाउ आई विल बिकम द presenter. Okay, so just stop sharing. Yeah. तो ये मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। आप लोगों के सामने एक कोड दिखाई दे रहा है जो अभी आप लोगों ने खुद ने बनाया है मेहनत करके। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ आप लोगों को कैलकुलेट करना है सरकमफेरेंस। ओके, ये दोनों चीजें पता है। आप लोगों को ये भी पता है कि इसके लिए सिर्फ हमको रेडियस की जरूरत है। बहुत बढ़िया, प्रोग्राम काफी अच्छे से आपने किया, इंक्लूड आपने कर लिया। और पिंकी शायद पहले कंप्यूटर की क्लास जा चुकी है कहीं पर। सर Yes? मेरे बीएससी में थी। बीएससी में आपको था ना। तो देखिए, आपको conio.h लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डॉस बेस्ड यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसी से समझ में आया, आपको थोड़ा याद रह गया कि conio.h हम लोग यूज करते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। मैंने किसी भी प्रोग्राम में यूज नहीं किया। आपने इंटीजर मेन लिखा, ग्रेट, इंटीजर मेन। बार बार गायत्री का डाउट था कि क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है तो हम बार बार मतलब हम इसमें फ्लोट ही लेंगे करके, है ना। ऐसा नहीं है,
ये जो इंटीजर है ये मेन फंक्शन मेमोरी को क्या रिटर्न कर रहा है, तो मेन फंक्शन मेमोरी को रिटर्न कर रहा है 0। जैसे आपने इंटीजर मेन लिख दिया ऑटोमेटिकली आपका अगला स्टेटमेंट 0 ऐसे लिख देना, ठीक है। ट्रेडिशनल सी में ये फंक्शन के फॉर्मेट में यानी ब्रैकेट के अंदर रिटर्न कर सकते थे आप, तो ब्रैकेट के अंदर रिटर्न करो या बाहर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। ओके, अब यहाँ देखिए आपका ये प्रोग्राम की स्ट्रक्चर पूरी बन चुकी है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो जो चाहिए था, मतलब एक मिनिमम प्रोग्राम इतने एलिमेंट से बनेगा। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एंटर क्या करवाना चाहते हैं। एंटर आप करवाना चाहते हैं इंटीजर r को। दूसरी बात ये है कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट फ्लोट पाई आपके पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप कभी चेंज नहीं करने वाले, 3.14। ओके, सो लेट मी चेक whether this is able to build or not. Fine. यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? आपको ये दो चीजों की जरूरत है, पाई आपको पता ही है, कांस्टेंट इसलिए लगाया क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, आप इस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब आपका पहला आपने रखा फ्लोट, तो मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ फ्लोट। मैंने जो एडिशनल किया उसको ऊपर कर देता हूँ, उसको ऊपर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इंटीजर r आपने लिखा था, आप लोगों को थोड़ा लग रहा है कि इंटीजर r होना चाहिए, तो ठीक है इंटीजर r लिख लेता हूँ मैं। रेडियस में भी फ्लोटिंग नंबर ना, तो इसलिए मैं फ्लोट रेडियस भी लिख सकता हूँ, फ्लोट और इंटीजर बोथ, ठीक है। ये आपने रेडियस ले लिया, आप एक एक लाइन एंटर करके वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14 कॉमा एरिया है ना, तो अब मैंने लिख लिया फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14 और मैं भी कांस्टेंट भी हटा देता हूँ। जैसा आपने लिखा है प्रोग्राम सेम टू सेम वैसा ही लिखूँ ना पहले, फिर मैं उसके बाद उसकी एरर या जो भी प्रॉब्लम होगी वो बताऊंगा। इंटीजर r, फाइन, ये भी हो गया। इसके बाद आपने लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ में क्या लिखा आपने, प्रिंटफ में लिखा है, अच्छा फ्लोट के बाद पाई ये लिखा है और कॉमा एरिया भी लिखा है, एरिया, जबकि मुझे सरकमफेरेंस भी निकालना था, तो मैं अभी पहले आपका ही प्रोग्राम करूंगा। लेकिन इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन, प्रिंटफ डबल कोट के अंदर /n लगाया, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने काम किया, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइन, वेरी नाइस, कोलोन लगाया, बहुत ही बढ़िया, सेमी कोलोन लगाया। देन स्कैन ऐप, आप स्कैन क्या करवा रहे हो, ये हमेशा गड़बड़ी हो रही है, स्कैन ऐप, ओके, स्कैन ऐप आप क्या करवा रहे हो, डबल कोट के अंदर करवा रहे हो %d। क्यों %d? क्योंकि आपका रेडियस इंटीजर वैल्यू है इसलिए। इसके बाद आपने क्या किया, एरिया इक्वल्स टू लिखा पाई इंटू r, ओके ग्रेट, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंटफ और इसके बाद आप लोगों ने स्कैन एफ करवाया, हाँ मैं ही भूल जाता हूँ बार बार क्योंकि मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करता हूँ ना, इसलिए एम्परसेंड नहीं लगाया था। देन स्कैन एफ डबल कोट के अंदर मैंने लिखा /n एरिया ऑफ सर्कल is equals to %d, ग्रेट, फॉलोड बाय कॉमा। यहाँ आपसे एक मिस्टेक हुई है क्योंकि जो भी वेरिएबल है वो आपको डबल कोट के बाहर रखना है, ओके, तो ये वेरिएबल है, ये एरिया ट्रांसफर होगा %d के अंदर, फाइन। अब इसके बाद आपने लिखा रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 लिखा गया है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है।
बिल्ड एंड रन। तो यहाँ इन्होंने बोला फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। ओके, यहाँ कॉमा लगाना था ना मुझे, ये मेरी गलती है लिखने में। बिल्ड एंड रन। नाउ एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज मैंने 3 डाला, सो दिस इज अवर आंसर एंड आंसर इज नॉट करेक्ट। मैंने तो सिर्फ रेडियस 3 ही डाला है पर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। क्या रीजन हो सकता है? ये स्क्रीन नहीं दिख रहा ना आप लोग को? आंसर वाला स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ये रहा जो है रन हो सर। रहा है दिख रहा है ना? यस। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने क्या किया है, ये तो बिग बकेट आपने ले ली, ठीक है। पाई इंटू आर भी सही लिखा है, मैंने एंटर सही किया था ना वैल्यू, ये भी देख लूं। ये है ब्लैक स्क्रीन, इंटर मैंने 3 ही किया था। इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल मैंने 3 डाला, एरिया ऑफ सर्कल ये निकल के आया। क्या गड़बड़ी हुई है? कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आप लोगों को? चलो अब हम सपोज करते हैं कि इसको भी फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। FLOAT फ्लोट ले लेते हैं। अब शायद इसका आंसर आ जाए हमारे पास। और ये मेरे से यहाँ पर एरिया, इसको स्लैश एन से चिपकाना रहता है हमेशा, बिकॉज अदरवाइज इट विल डिस्प्ले। तो मैंने जो आपने प्रोग्राम लिखा वही लिखा हुआ है ना, कोई अलग प्रोग्राम तो नहीं लिखा है। नाउ लेट अस रन वंस अगेन, बिल्ड एंड रन। So now it is asking for, suppose I had given 3. Now area of circle is 0. Okay. Now the problem get resolved. Okay. Although this is integer also, this can be integer also, but whenever you are showing your area, here what is written by you? What is written by you? It is written %d. So this %d is erroneous. So let me solve this problem. %f I had written, and now let us compile once again. Okay, आप ही का पूरा प्रोग्राम है, केवल मैंने %d को %f किया है। इंटीजर भी वही है, ठीक है, कोई मैंने अंतर नहीं रखा है। इंटीजर आपका ही है, सब आपका है, बस यहाँ %f पर मैंने दे दिया है। अब मैंने लिख दिया है 3। तो अब आंसर आपका देखिए सही आ रहा है। 3 multiplied by 3 is 9, 9 multiplied by 3 is 27, and 1.14 आप करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आंसर आएगा। करेक्ट और नॉट? यस सर। ओके। यस सर। अब हाँ, जो फंक्शन मेन है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, ये डिफॉल्ट है। दूसरी बात ये है कि आपको इसी में मैंने कहा था सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट करना है। तो अब आपको केवल एक चीज करनी है। पहली बात तो ये है कि जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको आप कांस्टेंट के साथ लिखो। देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि कांस्टेंट के साथ लिखो का क्या मतलब है। मैंने अभी यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखा है, ठीक है, और पाई इक्वल्स टू मैंने इस स्टेटमेंट के बाद लिख दिया, या इस स्टेटमेंट के बाद नहीं। अभी आपका पूरा प्रोग्राम ऐसे का ऐसे ही मैंने रखा है। अब मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई इक्वल्स टू 6, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, पाई इक्वल्स टू 6 लिखा। अब और मैं 1 एंटर करवाता हूँ, रेडियस 1 एंटर करवाता हूँ, ताकि आप लोग को आंसर समझने में दिक्कत ना जाए। तो अबॉर्ट एंड देन बिल्ड, रिबिल्ड, और ये प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया। मैंने एरिया डाला 1। अब यहाँ देखिए आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया? 6 आ गया। आया है कि नहीं आया? यस और नो? क्या गलती हो गई है मेरे से?
कोई जवाब नहीं आ रहा है आप लोग के? क्योंकि मैंने यहाँ पाई की वैल्यू 6 कर दी है। अब मैं यदि इसी को वापस से कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट कर देता हूँ, कांस्टेंट, ठीक है, और इसके बाद ये मैं दूसरी लाइन में फ्लोट लिखता हूँ, फ्लोट। अब क्या होगा कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा ना, तो ये मुझे एरर दे सकता है। देखते हैं एरर देता है या कुछ और देता है। ये देखिए, असाइनमेंट टू रीड ओनली वेरिएबल, तो जैसे ही आप कांस्टेंट रख देते हैं यहाँ पर, तो ये वेरिएबल बन जाता है रीड ओनली। अब आप इसको कितना भी कोशिश कर लो, ये मॉडिफाई नहीं होगा, हमेशा 3.14 रहेगा। मतलब धोखे से भी आपने कहीं पाई की वैल्यू चेंज कर दी तो वो चेंज हो जाती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको आपको हमेशा कांस्टेंट फ्लोट या कांस्टेंट इंटीजर से डिक्लेयर करना है। अब मैं इसको वापस से डीबग एंड रन करता हूं। तो अब आप देखिए, मैंने फिर से 3 डाला, आंसर सेम आएगा, जो पुराना वाला 3 डाला था वही आएगा, है ना? यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। अब आपको इसी वैल्यू को लेके आपको क्या करना था, सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट करना था। तो आप क्या कर दो कि सरकम नाम का एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, और अब आप यहाँ सरकमफेरेंस नाम, सरकम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, ये आपने कर दिया। अब इसी के अंदर दूसरे फॉर्मूले का आंसर आप यहाँ पर दे सकते थे, ठीक है। यहाँ आपने एरिया की जगह लिख दिया सरकमफेरेंस। सर फाइन, इसको हमें साथ में यस, बोलो। आपका प्रॉब्लम ये था, आपको मैंने बताया था कि आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप देखिए इसका आंसर, ये आंसर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल एंड circumference ऑफ सर्कल इज दिस। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब सर्कल से रिलेटेड और क्या चीजें निकाल सकते हैं हम लोग? रेडियस निकल गया, सरकमफेरेंस निकल गया, और कोई मेजरमेंट निकलता है इसमें? सर्कल का सेक्टर, सेक्टर का एरिया। एरिया तो निकल गया, सरकमफेरेंस भी निकल गया, और कोई मेजरमेंट हम कैलकुलेट करते हैं क्या सर्कल के लिए? यस, देख लेते हैं। मेजरमेंट रिलेटेड टू सर्कल, डायामीटर, डायामीटर भी आप इसी फॉर्मूले में यहाँ पर डायामीटर ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। प्रिंटफ डायरेक्ट, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। लिखा डायामीटर ऑफ सर्कल इज 2r, 2 multiplied by r. Okay, so now this program, अब आपने 1 दिया तो डायमीटर इज 2 ट्वाइस। अच्छा, डायमीटर, ओके, देयर इज वन प्रोग्राम problem, %f is written, 2 into r is written. So what is the problem?
Okay, now the answer is coming. Fine, because previously it was integer. So whenever you want and you expect the floating point number, then it must be written 2.0 or something like that. तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे तो और जो भी वैल्यूज है वो इसमें ऐड कर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे सर्कल से रिलेटेड और भी क्या है देख लेते हैं हम. ओरिजिन अभी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. डायामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है. सरकमफेरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है. आर्क का फॉर्मूला क्या है? The arc of a circle is measured in degree or radian. So again for this purpose we need to calculate the even chord. इसके फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है. ये जैसे ये है ना. This formula is P equals to pi into D, that is 2 pi r. तो ये तो हमने निकाल लिया. एरिया भी निकाल लिया हमने. एंगल्स निकालने के फॉर्मूले थोड़े अलग है तो ये अभी हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे. इसको निकालने के लिए हम लोग को स्पेशल मैथमेटिकल वो लगाने पड़ेंगे. अभी तो तुरंत आज तो नहीं निकाल पाएंगे इसलिए क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू कितनी होगी, फिर इतनी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कौन कौन से फंक्शन लगेंगे, उस फंक्शन के हिसाब से बाकी की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. तो उसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती है. तो कम से कम सर्कल, सरकमफेरेंस, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस आप लोगों को पता है, इसलिए कोई डाउट नहीं है. सिमिलरली ट्रायंगल तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, parallelogram, area of parallelogram is also a bit complicated. So likewise you can find the different formula और आप एक फॉर्मूले से एसोसिएटेड कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. नो सर. श्योर. तो आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है. आप लोगों ने एक दूसरे को करेक्ट किया, दैट इज वेरी गुड थिंग. एंड प्रोग्राम 50% सही बना था लेकिन 50% गलत नहीं बना था. 50% था ही नहीं प्रोग्राम, है ना. केवल 50% ही प्रोग्राम आपने बनाया था. तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि प्रोग्राम क्या दिया हुआ है. तो यहाँ पर प्रोग्राम आपको ये दिया हुआ था. नहीं, मैंने आपको यही बोला था, दोनों चीजें आपको एरिया और सरकमफेरेंस दोनों कैलकुलेट करना. आपने ध्यान नहीं दिया होगा. सर हमें लगा आपने सर्कल अकेले का बोला है. नहीं, सर्कल अकेले का ही तो बोला है. सर्कल का ही कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल एंड फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और दोनों के फॉर्मूले लिख के दिए थे मैंने आपको. हमें लगा सर दोनों के अलग अलग प्रोग्राम बनाने हैं. नहीं, जब तक आप लोगों को अलग से ये कोट ना करे कि आपको अलग अलग बनाने हैं, तब तक आप लोगों को अलग अलग से नहीं बनाने. ठीक है. तो दिस इज 10 मिनट्स और बचे हैं आप लोगों के. यस. सर 5 से ऑर्गेनिक की क्लास है हमारी. अभी किसकी क्लास है? 5 ऑर्गेनिक की, मनमोहन सर की. अच्छा ठीक है. तो मैं यहाँ से आप लोग के अटेंडेंस मैंने देख ही लिया है. आज कौन कौन आया है. केमिस्ट्री में 3 लोग हैं. क्या अनिल, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही. सर कोनियो कब यूज करते हैं? कोनियो जब हम जैसे गेट सी एच या गेट सी एच ही फंक्शन यूज करना चाहते हैं तब हम कोनियो यूज करते हैं, या उससे एसोसिएटेड इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शन. तो हम लोग नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस है कि कोनियो यूज नहीं करने वाला. ठीक है. ओके सर. हाँ, जब आप डॉस में प्रोग्राम बनाते हो तब कोनियो यूज करते हो. हम डॉस यूज ही नहीं कर.
यस अगर सर पिंकी। हम आज यहाँ कर देते इसी प्रोग्राम में तो रन नहीं होता क्या प्रोग्राम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे ही रहा है, प्रोग्राम तो रन हो। इंक्लूड onio.h, ये देखिए, और इसके बाद get ch, गेट केयर रहता है ना, गेट केयर, ये फंक्शन आपका रहता है डॉस में, तो आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पर लगाना पड़ जाता, ठीक है। और इसके बाद भी ये रन होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। ये देखिए रन हो गया 45, और इसके बाद ये आउटपुट आ गया, सेम आउटपुट आया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इस पर्टिकुलर लाइन को लाने के लिए आपको गेट ch की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जैसे आप एक गेट केयर की जरूरत पड़ती है, जैसे आप एंटर या कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन से बाहर निकल जाते हैं। आप यदि ये फंक्शन ना भी लिखे तो भी आपका सेम चीजें आ रही है। देखिए ये मैंने रन करवाया, बिल्ड एंड रन, ठीक है। अब ये रन हुआ, मैंने 5 डाला, बहुत ज्यादा ही तेजी से रन हो गया, बिल्ड एंड रन। ये मैंने जैसे ही 5 डाला तो इसके बाद ये आउटपुट आया। इसके बाद ये अगेन इट इज आस्किंग फॉर प्रेस सम की, और मैंने जैसी की प्रेस किया बाहर निकल गए। इसलिए आपको 2 लाइन का बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और ऐसी हम आगे अगले हफ्ते भी ऐसी मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल फॉर्मूले वाला, सिंगल वैल्यू मल्टीपल फॉर्मूले वाला प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा पंकज का क्या प्रॉब्लम है? सर उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनका कुछ पता नहीं क्या है, आज बहुत प्रोग्राम कुछ बता रहा था। ठीक 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 है। यस सर डाउट सर, जैसे कि हाँ। फॉर्मूला में हमने डायरेक्टली लिख दिया पाई इंटू आर, अगर पाई हाँ। की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते 3.14 तो आंसर आता? बिल्कुल आता, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाई इसलिए लिखा आपने क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप सर्कल का फॉर्मूला बना रहे हो करके, ओके सर, है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर अगर तो फ्लोट में हाँ, पाई यूज ना करें तो? फ्लोट में पाई यूज ना करें, इंटीजर में यूज करोगे? नहीं सर, अगर पाई यूज ही नहीं करें, ओनली फॉर्मूले में लिख दे 3.14। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये इस लाइन को ना लिखो, ठीक है, और केवल फॉर्मूले में सीधे जहां पाई लिखा है उस जगह पे 3.14 लिखो। लेकिन ये तो आप जानते हो, कोई यदि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रहा जहां पर कोई और कांस्टेंट आते, जैसे आर कांस्टेंट एक आता है, आर का कांस्टेंट वैल्यू किसको पता है? पाई की तो सबको पता रहती है, लेकिन बाकी की वैल्यू कितने लोगों को पता रहती है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे अवॉइड करने के लिए एक जनरल प्रैक्टिस में आप वो करते हो कि भाई पाई की जगह पे मतलब पाई लिख लो और पाई की वैल्यू बता, सिर्फ इसलिए जनरल प्रैक्टिस। इट इज नॉट मीन्स, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वैसे ही यूज करो। आपने यहाँ पर जो प्रोग्राम चाहा था वो बना के दिखा दिया, वैसा भी कर सकते, ठीक है। ओके। तो और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू।